Good morning, students. Today we are going to discuss one more topic of chapter 6, that is work. What is work? In physics, work is said to be done when any force produces displacement, or we can say work can be done only in the two conditions. Number one, when certain force is working on a body, and number two, body is also moving, then in that condition only the work will be done. So how to define work done? Work done, work. Work is said to be done by a force when it actually displaces a body in its direction. जब फोर्स किसी बॉडी को अपनी डायरेक्शन में मूव करा देता है, देन वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है. मैथमेटिकली मैं कैसे एस्टेब्लिश करूंगा वर्क का एक्सप्रेशन? लेट अस सी. लेट अस सपोज ए बॉडी ऑफ मास m is acted upon by a certain force F, making an angle theta with horizontal direction. Under the effect of this force, body displaces over a distance s in horizontal direction. Breaking F into components. Force F के अगर मैं rectangular component कर लूं तो one component in horizontal direction, that is Fx, and vertical direction में जो component आएगा that I am calling Fy. तो Fx can be written as F cos theta, Fy equal to F sin theta. We see that only the displacement comes in the direction of Fx. Body is neither moving up nor moving down, so no displacement is seen in the direction of y. So work done is what? Work done says the displacement in the direction of force. So work done W equal to Fx, yani component of force in the direction of displacement multiplied by the displacement itself. यानी F cos theta multiplied by S, और I can better write it Fs cos theta. But हमें पता है if two vectors are so multiplied that there comes a cos relationship between them, then such a multiply is called dot product or scalar product. So we can say W equal to Fs cos theta can also be written as vector F dot vector S. Yani from here I can say work done is the dot product of force and displacement. What if force and displacement are given in component forms? अगर कार्टेशियन कंपोनेंट की टर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए जाए तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन? हमें पता है इफ F इक्वल टू Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप एंड वेक्टर S इक्वल टू Sx i कैप Sy j कैप एंड Sz k कैप, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है वर्क डन इक्वल टू द वेक्टर F डॉट वेक्टर S, और हमें पता है दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनके i के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई प्लस j के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई प्लस k के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, यानी इन सबको म्यूचुअल मल्टीप्लाई करके मुझे ऐड करना, तो आई कैन राइट Fs Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz. तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ यूनिट्स ऑफ वर्क. Units of work. Work like force can have two types of unit. One are absolute units and other are gravitational units. SI unit. SI unit is joule. 1 joule is the work done if force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter. So 1 joule is also written as kilogram meter square second की power minus 2. Similarly, CGS unit in absolute system is erg, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस 2. 1 erg is the work done by a force of 1 dyne when it produces a displacement of 1 centimeter in its direction. 1 joule and 1 erg are related to each other by 10 raised to the power 7, यानी 1 joule equal to 10 raised to the power 7 ergs. Gravitational unit. Gravitational unit is kilogram meter. 1 kilogram meter. When 1 kilogram force produces a displacement of 1 meter in its direction, then work done will be said to work done will be 1 kilogram meter. 1 kilogram meter is equal to 9.8 joule. 1 kilogram meter 9.8 joule के इक्वल होता है. और ग्रेविटेशनल यूनिट इन सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर. 1 gram centimeter is the work done
by a force of 1 gram force in producing displacement of 1 centimeter. 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग्स. अगर ग्राम सेंटीमीटर और ग्राम किलोग्राम मीटर का मैं कंपैरिजन करूं तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, यानी 1 किलोग्राम मीटर 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर के इक्वल होता है. तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क. नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 t की पावर -2, और वी कैन से डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क इज w इक्वल टू ml2 t की पावर -2. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्क. वर्क कैन बी ऑफ 3 टाइप. वन इज पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 नेगेटिव वर्क, नंबर 3 जीरो वर्क और नो वर्क. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क, the work done will be positive if displacement is produced in the direction of force. फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जाए तो फिर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क का आ जाएगा. हमें पता है W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, और अगर वर्क पॉजिटिव है तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो से बड़ी सारी वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है. और ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नेगेटिव हो सकता, ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. दैट्स व्हाई जो भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो कोस थीटा पर जाएगा. तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो कोस थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कोस थीटा नेगेटिव हो सकता था. तो कोस थीटा शुड बी पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. और हमें पता है कोस थीटा की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है क्वाड्रेंट नंबर 1 में और क्वाड्रेंट नंबर 4 में. तो मैं जस्ट यहाँ क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहा हूं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में सबसे बड़ा एंगल 180 डिग्री बन सकता है किसी भी साइड से. तो इसलिए यहां पर सिर्फ मैं क्वाड्रेंट 1 और 2 को कंसीडर करूंगा, 3 और 4 क्वाड्रेंट यहां पर कंसीडर नहीं किए जाते. तो क्वाड्रेंट 1 में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल या इससे बड़ी है और 90 से छोटी है तो ये होगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोस. यानी हम कहें अगर थीटा एक्यूट है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. तो अगर दो वेक्टर के बीच में एक एक्यूट एंगल बना हुआ है देन वर्क डन विल बी सर्टेनली पॉजिटिव. इसके कुछ एग्जांपल है. जब हम किसी लोन रोलर को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो लोन रोलर हमारे फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है. अगर ये होता है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. तो पुशिंग या पुलिंग में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा अगर लोन रोलर हमारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करे. बट समटाइम्स लोन रोलर इज ऑन सम इंक्लाइंड प्लेन, हम उस पर फोर्स लगाते हैं ऊपर खींचने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस ये नीचे की तरफ मूव करने लगता है. तो उस पर्टिकुलर केस में यही वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगा के हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेचिंग भी उसी डायरेक्शन में होती है, इसलिए वर्क डन विल बी पॉजिटिव. सिमिलरली व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पर्टिकुलर केस में जो फॉलिंग में वर्क हो रहा है ये भी पॉजिटिव है. नेक्स्ट, व्हेन ए गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, अगर किसी सिलेंडर में एक मूवेबल पिस्टन लगा है तो इसमें फिल्ड गैस को अगर मैं एक्सपेंड करने के लिए फ्री छोड़ दूं तो पुश ऑफ द गैस मूव्स द पिस्टन अपवर्ड, यानी जिस डायरेक्शन में गैस का फोर्स काम कर रहा है पिस्टन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क. सेकंड कम्स नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क डन will be negative if displacement produced is in the opposite direction of applied force. जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया अगर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो इसको मैं कहता हूं नेगेटिव वर्क. एक बार फिर देख लेते हैं. हमें पता है W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, और यहां पर वर्क डन लेस देन जीरो है. लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू कोस की जो होती है वो होती है क्वाड्रेंट नंबर 2 में. क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो वैल्यूज ऑफ एंगल है वो 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में होती है. अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री के इक्वल या इससे छोटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज है, और इसको मैं कहता हूं कि यहां पर कोस नेगेटिव होगा.
and theta is obtuse angle now. तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है तो इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क, अगर किसी बॉडी को ऊपर उठाया जाए तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम इसको उठा रहे हैं, यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव. वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रिक्शन हमेशा उसके अगेंस्ट काम करता है. वर्क डन बाय विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग लिक्विड फ्रिक्शन होता है, थोड़ा आगे आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी नेगेटिव वर्क होता है. वर्क डन बाय द ब्रेक फोर्स ऑन ए मूविंग व्हीकल, जब किसी मूविंग व्हीकल पर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, मींस जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव. वर्क डन इन स्विमिंग और वॉकिंग, जब हम चलते हैं या स्विम करते हैं तो जो वर्क डन होता है ये भी नेगेटिव वर्क होता है. नाउ द थर्ड वन इज जीरो वर्क और नो वर्क. किसी भी बॉडी पर कोई वर्क नहीं किया जाएगा अगर तीन कंडीशन फॉलो हो. एक, तो उस पर कोई फोर्स ही ना लगे यानी फोर्स इज जीरो. दूसरा, फोर्स तो लगे लेकिन उसमें कोई मोशन ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तो दूसरा यानी ये भी वर्क डन नो वर्क की सिचुएशन होगी. और अगर मैं मान लूं कि दोनों चीजें हैं, फोर्स भी लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, बट इस पर्टिकुलर केस में भी वर्क डन जीरो होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो हम यहां से तीसरी कंडीशन को डिस्कस करते हैं. वर्क डन विल बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स अप्लाइड. अगर बॉडी पर जो फोर्स लगाया हुआ है उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए. लाइक इसका बेस्ट, इसको मैं यहां से कह सकता हूं, हमें पता है W इक्वल टू FS cos थीटा, और अगर वर्क जीरो है तो cos थीटा भी जीरो होगा, और हमें पता है जीरो जो है cos 90 की वैल्यू होती है, थीटा शुड बी 90, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तब भी वर्क डन जीरो होगा. तो यहां से हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. वर्क डन बाय ए वेट लिफ्टर व्हाइल होल्डिंग अ वेट फॉर सम टाइम. एक वेट लिफ्टर एक वेट उठाता है. तीन तरह के वर्क होते हैं वेट लिफ्टर में. जब वेट लिफ्टर फोर्स लगाता है, वर्क करता है, वो वर्क पॉजिटिव होता है बाय द वेट लिफ्टर. लेकिन ये फोर्स जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है, यानी जो वेट में उठा रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव. तो लिफ्टर का जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी पर्टिकुलर वेट पर नेगेटिव वर्क करता है. बट जब ये लिफ्टर इसको कुछ देर रोक के खड़ा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. इन पर्टिकुलर केस वर्क डन विल बी जीरो. दूसरा, वर्क डन बाय अ कुली अगेंस्ट द वेट. एक कुली अपने सिर पर कुछ लोड रख के जा रहा है. जिस तरफ कुली चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर कुली चल रहा है, जबकि वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. दिस वे वी कैन से वर्क डन बाय द कुली अगेंस्ट द वेट इज जीरो, ऑल्दो कुली इज डूइंग नेगेटिव वर्क आल्सो. वो वॉकिंग कर रहा है और वॉकिंग में जो वर्क होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव वर्क भी कुली कर रहा है बट अगेंस्ट द वेट इसका वर्क डन जीरो है. व्हाइल पुशिंग अ स्टेशनरी कार, जब हम किसी खड़ी हुई कार पर धक्का लगाते हैं और वो नहीं चल रही होती हमारे फोर्स से, तब भी वर्क डन जीरो कहा जाता है. एंड वर्क डन बाय टेंशन, जो फोर्स ऑफ टेंशन है किसी भी स्ट्रिंग में, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी हैंगिंग बॉडी में, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन इन string of a hanging or oscillating body is always zero. So these were few examples. So here the important thing to note, work done will be positive if angle between the force and displacement is acute. Work done will be negative if angle between the force and displacement is obtuse, and work done will be zero if angle between the force and displacement is 90 degree. So this way we can define the negative, positive and zero work. Work done by a variable force. A force is said to be variable if its magnitude is not constant. Although constant force are rarely seen, so most of the force are variable by nature. So how shall we calculate the work done by a variable force? There are two methods of calculating this work. First method is a graphical method. Let a variable force F is acted upon
a body such that it moves the body from point A to point B as shown. X एक्सिस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को दिखाया है और Y एक्सिस पर मैंने फोर्स को दिखाया है. द फोर्स आई एम टेकिंग इज वेरिएबल बाय नेचर. ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है जो टाइम के साथ बदल रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, दोनों तरह का इसका रेट है. और ये किसी पॉइंट ए से लेके किसी दूसरे पॉइंट बी तक मूव कर रहा है. तो मुझे ये वर्क कैलकुलेट करना है. हमें पता है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बी टेकन बाय एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. तो हमें पता है, यहां से मैं लिख सकता हूं वी नो वर्क डन is calculated by using area under force displacement graph. Force displacement graph यानी total work done in this process W is what? Area. अगर इस पॉइंट को मैं C और इसको मैं D मान लूं तो मैं कहूंगा एरिया A C D B A. यही है वर्क डन बाय द ग्राफिकल मेथड. बट सिंस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इस एरिया को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा एक पोर्शन अज्यूम करते हैं जिसकी थिकनेस में डेल्टा एक्स मानता हूं. ये डेल्टा एक्स इतनी कम होती है कि यहां पर फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाता है. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के मैं वो इससे करता हूं, वो स्ट्रिप डिवाइड कर लेता हूं जहां पर वर्क बिल्कुल, जहां पर फोर्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा है, यानी एक स्ट्रेट पैटर्न में ये मूव कर रहा है. तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेता हूं, सपोज दिस स्ट्रिप whose thickness is delta x and the average force that I am assuming on this is F. अगर इस पर एवरेज फोर्स F हो तो वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, वर्क डन ऑन नैरो स्ट्रिप, इस नैरो स्ट्रिप पर कितना वर्क हो रहा है, डेल्टा W कैन बी रिटन एज F डॉट डेल्टा एक्स. इसी तरह से मैं दूसरे पोर्शन को भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेता हूं और इन सारी स्ट्रिप्स को मैं अलग अलग एरिया निकालता हूं और इनको जोड़ लेता हूं. तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, और W कैन बी रिटन एज समेशन F डेल्टा एक्स. इन सारी स्ट्रिप्स का जो वर्क होगा उसको जोड़ लिया जाएगा. दैट विल बी द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कैलकुलस मेथड और एनालिटिकल मेथड वी कैन ऑल्सो कॉल इट. समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल मेथड. तो मैथमेटिकल कैलकुलस या एनालिटिकल मेथड. एक बार फिर, let a variable force F is acted upon a body such that it moves the body from A, जिसका पोजीशन वेरिएबल है x1, to B, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है x2. एक बॉडी को x डायरेक्शन में मूव कराता है. तो यहां से मैं कह सकता हूं let dW be the work done when given force F producing a very small displacement dx, क्योंकि such that force is constant. ये जो डिस्प्लेसमेंट dx था जो मैंने यहां पर डेल्टा एक्स लिया था, ये इतना छोटा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यानी फोर्स में कोई खास वेरिएशन हो नहीं रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कहते हैं, ये है dw, बट मुझे dw नहीं चाहिए. सो नेट वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B तक जो वर्क हम कर रहे हैं वो क्या होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम x1 टू x2. क्योंकि A का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो x1 था और B का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो x2 था. बट मुझे पता है dW वाज नथिंग, x1 से x2 तक का इंटीग्रेशन में कर रहा हूं F इंटू dx. तो दिस वे आई कैन से F इक्वल टू W इक्वल टू x1 टू x2 F डॉट dx. यही है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. बाय सॉल्विंग दिस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन. लेट अस सी सम एग्जांपल्स.
Let us now take some examples regarding the topics discussed in today's class. Question 1 says, from the given force displacement graph, calculate the work done at the end of displacement 20 centimeter, 40 centimeter and 60 centimeter. Graph is given here. Let us understand the graph first. This is a force displacement graph. Displacement is given in centimeter, whereas force is given in Newton. This is the zero line. This is plus 10 Newton, this is plus 20 Newton, here minus 10 Newton, minus 20 Newton. The displacement is changing by the block of 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 40, 50, 60 and finally the 70. So what you need to find? You need to find the work. Let us see the answer. Answer of question 1A. डिस्प्लेसमेंट कितना कहा थे 20 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दैट वी नीड टू डू एंड फोर्स इज व्हाट दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 20 न्यूटन. इस ब्लॉक में फोर्स 0 से 20 न्यूटन चेंज कर रहा है. तो ग्राफिकली मुझे ये जो वर्क मिलेगा वो मिलेगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सो W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू किसका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. और इस ट्राइंगल को चलिए कुछ नाम दे देते हैं. यहां से मैंने कहा ए बी, इसको कहा सी, इस पॉइंट को डी कहा, इसको चलिए मैंने ई कहा, इसको एफ कहा, जी कहा और एच कहा. इनको कुछ मैंने नाम दे दिए कुछ पॉइंट्स के. तो ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है ट्राइंगल एबीसी, यही होगा वर्क डन बाय दिस मेथड. और यहां पर हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास AC और हाइट कितनी है हमारे पास BC. सो हाफ इंटू बेस ये है मेरे पास सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट. हाइट इज व्हाट हाइट इज अगेन 20. ये जो वैल्यू आएगी जूल सेंटीमीटर, ये मेरे पास आएगी न्यूटन सेंटीमीटर. और इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है जूल में तो यहां पर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा. तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और यहां से कटा मेरे पास 2. तो वर्क डन इज व्हाट 2 जूल. इस पूरी प्रोसेस में जो वर्क आएगा वो 2 जूल का होगा. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर बी. ये कहता है x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर को मैं पहले ही कन्वर्ट कर लेता हूं 0.4 मीटर में. यहां से मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं. अब ये कहता है कि करना क्या है. इसके लिए मेरे पास जो यहां पर मैंने नेम लिए थे ऑलरेडी, ये थे ए बी सी डी, लेकिन डी जो आया था वो 50 सेंटीमीटर पर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसने मुझे बताया 40 सेंटीमीटर. तो लेट अस मेक इट ए सर्टेन नेम. यहां पर इसको मैंने एच के बाद आया आई और जे. अब कैसे कैलकुलेट करूंगा वर्क डन. W इक्वल टू होगा W1 प्लस W2. W1 इज व्हाट W1 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी यहां से मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ये पहला एरिया. दूसरा एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मेरे पास रेक्टेंगल है BIJC. BIJC इस ट्रायंगल का इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है, क्योंकि मुझे 50 सेंटीमीटर पर नहीं जाना है. यहां पर इसका एरिया ऑलरेडी कैलकुलेटेड है जो मैंने निकाल लिया था 2 जूल, यानी ये वर्क आया 2 जूल का. साथ साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल BIJC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BIJC ये कितना आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास है कितना CJ इंटू ब्रेड्थ कितना है मेरे पास IJ. और हमें पता है CJ कितना है 2 जूल, तो हमने एज इट इज कर लिया. CJ था मेरे पास 20 न्यूटन 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन फोर्स यानी 220. यहां पर ये मेरे पास आएगा 0 से 20 तक. तो आई कैन से 2 जूल 1 एक तरफ और यहां पर 4 जूल, यानी इट विल बी व्हाट 6 जूल टोटल. So this is the work done at the end of 40 centimeter displacement. The total work done by the variable force will be equal to 6 joule. अब जरा देखते हैं पार्ट नंबर सी. सी पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे.
पार्ट सी के लिए मुझे इसका एरिया चाहिए होगा, साथ साथ पार्ट सी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये एरिया चाहिए होगा, और साथ साथ मुझे एरिया ये वाला भी चाहिए होगा, जिसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे इतना एरिया, यानी ये एरिया भी मुझे चाहिए होगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द वर्क डन एट x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जब x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर करता हूं तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा चार तरह से। W1 ये वर्क डन प्लस W2 ये वाला वर्क डन 0 से 50 तक, प्लस W3 प्लस W4। W1 ऑलरेडी मेरे पास 2 जूल कैलकुलेटेड है, प्लस W2 होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDEC, और ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी मैं कह सकता हूं 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है। साथ साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल DE, और ये जो मैंने पॉइंट लिया है, चलिए इसको मैंने I कहा, DEI। ये डिस्टेंस मेरी जो है 5 सेंटीमीटर की है, 55 तक जाएगी, तो आई कैन से हाफ इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100 माइनस 1/2 20 इंटू 5 अपॉन 100। यहां पर फोर्स नेगेटिव 20 चला जाता है, 5 अपॉन 100 ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो व्हाट कम्स 2 जूल प्लस ये यहां से ये कटा, मेरे पास आएगा 6 और 2 8 जूल। तो टोटल वर्क डन इन द नेक्स्ट प्रोसेस एट द एंड ऑफ 60 सेंटीमीटर विल बी 8 जूल, क्योंकि दिस वर्क विल बी पॉजिटिव एंड दिस वर्क विल बी इक्वली नेगेटिव, सो बोथ कैंसिल ईच अदर, सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 says a variable force F equal to 3x square plus 2x plus 1 Newton acts on a body in x direction. Calculate the work done by the force in moving body from x equal to 1 meter to x equal to 3 meter. So what is the answer? Given is F equal to 3x square plus 2x plus 1 Newton, x1 equal to 1 meter, x2 equal to 3 meter. हमें पता है वर्क डन W can be written as x1 to x2 F dot dx, and since both force and displacement are in same direction, so angle will be 0 degree between them. F dx cos 0, and cos 0 is 1, so we can say work done will be x1 to x2 F dx. Putting the values x1 से x2 तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसका, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx का। W कैन बी रिटन एज ऑन सॉल्विंग x1 से x2 तक 3x स्क्वायर dx प्लस x1 से x2 तक 3x स्क्वायर 2x dx प्लस x1 से x2 तक dx। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा x1 x2 की वैल्यू में रख रहा हूं, ये बनेगा 3 एक तरफ और x क्यूब अपॉन 3, और इंटीग्रेशन वैल्यू यहां से आएगी 1 से 3 तक, लिमिट्स इसके क्योंकि मैंने ऑलरेडी x1 x2 को लिखा हुआ है। ये बनेगा मेरे पास 2 बाहर आएगा, और ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ लिया था 1 से 3 तक, और ये बनेगा सिर्फ मेरे पास x जिसकी वैल्यू भी बदलेगी 1 से 3 तक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 3 से 3 कैंसिल होएगा, 2 से 2 कैंसिल होएगा, सो आई कैन से पुटिंग द वैल्यूज ये बनेगा 27 3 का क्यूब माइनस 1 प्लस यहां पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस यहां पर 3 और माइनस 1, तो ऑन सॉल्विंग ये बनेगा मेरे पास 26 प्लस 8 प्लस 2, सो आंसर कम्स 36 जूल। तो W इक्वल्स टू 36 जूल, ये वर्क डन होगा 36 जूल का। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन by a force in graphical method. How shall we calculate the work using a graph? So this is all about today's class. Thank you for watching. Have a good day.